नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने अकबर, बाबर और हुमायूं का जो थ्योरी था विथ एमसीक्यू घटनाचक्र हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। और ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है। इस श्रृंखला में अगला टॉपिक है औरंगजेब का। आइए औरंगजेब के बारे में भी जान लेते हैं। औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहाँ, ठीक है। औरंगजेब ने सक्सीडेड बाई शाहजहाँ टू द मुगल थ्रोन, but not with the rule of succession of eldest son, but by the force of sword. ठीक है, the sword was a symbol of power in the Mughal period. The decision of succession was settled only by the strength of the sword. The coronation of Mughal army emperor Aurangzeb was held twice. His first coronation was held on 31st of July 1658 in Delhi. His second coronation took place in the success in the Battle of Khajwa and Devarai in Delhi on June 15, 1659. Assuming the title of Abdul Muzaffar Mahuddin Muhammad Aurangzeb Bahadur Alamgir Padshahi Ghazi, he sat on the throne of the Mughal emperor. There was a battle between the Aurangzeb and Dara Shikoh in 15th of April 1658 in Dharmat near Ujjain in MP. Dara Shikoh was supported by Raja Jaswant Singh of Jodhpur and Aurangzeb supported by Prince Murad. Battle of Samugarh took place on 29th of May 1658 between Aurangzeb and Murad joined forces against Dara Shikoh, in which Dara Shikoh was defeated. शहजादा सुलेमान शुको जो थे वो दारा शुको के पुत्र थे। वो डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड शॉट रिफ्यूज फ्रॉम द रूलर ऑफ श्रीनगर गढ़वाल पृथ्वी सिंह, ठीक है। बट हिज सक्सेसर बंदी सिंह हैंडेड हिम ओवर टू औरंगजेब. सुलेमान शिको वॉज इम्प्रिजन्ड इन द ग्वालियर फोर्ट एंड ही वॉज किल्ड बाई एक्सेसिव डोज ऑफ ओपियम, ठीक है ना। जो सुलेमान शेख सुको थे, दारा शिको के पुत्र, उनको क्या किया, जेल में रखा गया ग्वालियर फोर्ट के और उनको मारा गया एक्सेसिव डोज ऑफ ओपियम से, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ 1665 AD, औरंगजेब सेंट अ लार्ज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा जय सिंह टू सप्रेस शिवाजी. Jai Singh was a Kachwa ruler who was expert in both the arts of peace and war. He was a clever diplomat. वो एक क्या थे, clever diplomat थे, and he understood that it was necessary to have a friendship with Shivaji to win Bijapur. And despite the victory of Mughal on the fort of Purandar and siege of Raigad, he made a treaty with Shivaji. The Treaty of Purandar took place in June 1665 AD. Muhammad Akbar, the rebellious son, revolted against the father in 1681 AD, weakening Aurangzeb's opposition against the Rajputs. Akbar was disappointed with the war against the Rajputas. He did not believe in the success of his father's fanatic policy, and he was generous with idea. On the same occasion, King Raj Singh of Mewar and Durga Tas, the Rathod leader of Marwar, proposed him that if he declared himself the king of India, the forces of both Mewar and Marwar would help him. The contemporaries of Aurangzeb considered him as a Shahi Dervish, and Muslim considered him as a Zinda Pir. In 1658-52 AD, when Aurangzeb was appointed as the Subedar of the south for the second time, he adopted the aggressive policy against Golconda and Bijapur. Perhaps he would have demolished both of these states. ठीक है, but according to the order by Shah Jahan, in consultation with Dara Shikoh, the battle was suspended, and he had to treaty in 1656 AD with Golconda and 1657 AD with Bijapur. ठीक है, आफ्टर बिकमिंग द एम्प्रर बनने के बाद ही टुक हिम प्लान टू लॉजिकल कंक्लूजन. उसके बाद वो एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं कंट्रोल ओवर बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 AD में. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, मोस्ट ऑफ द कमांडर इन द मुगल आर्मी वेयर हिंदूज. औरंगजेब के टाइम में जो मोस्ट ऑफ द कमांडर थे मुगल आर्मी में वो कौन थे, हिंदू थे. ड्यूरिंग हिज रिजाइन 31.6% ऑफ द टोटल जनरल वेयर हिंदू, अमंग हुम मराठाज more than 50%. ड्यूरिंग अकबर रिजाइन प्रोपोर्शन वॉज 22.5% था.
इसमें 22.4% इन द रीजन ऑफ शाहजहाँ के रीजन में था। अकबर ने अबॉलिश किया था जिजिया ड्यूरिंग हिज रीजन, बट औरंगजेब री इम्पोज इट ऑन द नॉन मुस्लिम इन 1679 AD। हिंदू वे आर कैटेगराइज इन 3 क्लासेस द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स, ठीक है, 3 क्लासेस में उनको डिवाइड कर दिया गया। दिस विद द इनकम लेस देन 200 दिरहम पर एनम हैड टू गिव 12 दिरहम पर एनुअल एज टैक्स। जिनकी इनकम 200 दिरहम से कम थी उनको 12 दिरहम देना था पूरे साल भर में टैक्स। जिनकी जो इनकम 10,000 दिरहम से पर एनम से कम थी उनको 24 दिरहम देना था और जिनकी 10,000 दिरहम से ज़्यादा थी उनको 48 दिरहम पर एनम देना था। वुमेन स्लेव्स, चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर, बेगर एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। द सबॉर्डिनेट हिंदू किंग एंड ब्राह्मण्स वेर कंपेल्ड टू पे दिस टैक्स। औरंगजेब वॉज अ सुन्नी मुस्लिम, ठीक है ना, वो सुन्नी मुस्लिम थे। हिज रिलीजियस पॉलिसी वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी आइडिया वर्ल्डली प्रॉफिट। Aurangzeb tried to enforce the Quranic law according to which Muslim needed to carry on jihad, holy wars against non-Muslim land. Darul Harab, they were converted to Islam, Darul Islam, ठीक है ना। He stopped putting tilak with his hand on the forehead of the Kendu king was started by Akbar. Prostitutes were to marry or leave the country, ठीक है। There were a ban of celebrating Basant, Holi, Diwali, etc. in the court. औरंगजेब ने बिल्ड करवाया क्या, मौसलम फॉर हिज बिलव्ड वाइफ राबिया उद दौरानी इन औरंगाबाद इन 1651 से 1661 AD. It was also known as बीबी का मकबरा. Its architectural style was based on well-known Taj Mahal. So it is also called second Taj Mahal. मोती मस्जिद जो है inside Red Fort in Delhi was built by औरंगजेब. मेहरुनिसा जो थी डॉटर थी किसकी, मेहरुनिसा जो डॉटर थी औरंगजेब की, वाइल जहान आरा, रोशन आरा और गौहर आरा जी वे द डॉटर ऑफ शाहजहां. द अदर डॉटर्स ऑफ औरंगजेब वेयर जेबुनिसा, जिनातुनिसा, बदरुनिसा और जुबादुतनिसा, ठीक है ना। औरंगजेब ने बेस्टोड टाइटल ऑफ साहिबत उस ज़मानी टू जहां आरा, उनको टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया। सम्राट रामदास जो थे वो ग्रेट सेंट थे महाराष्ट्र के। ही वॉज बॉर्न इन 1608 AD एंड डाइड इन 1681 AD. इनके जो कंटेम्प्रेरी थे किंग, वो मुगल किंग थे औरंगजेब, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने औरंगजेब का जो चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है अब घटना चक्र से। अब हमारा अगला टॉपिक है इसके क्वेश्चंस को लगाना, आइए देख लेते हैं। औरंगजेब थे वो सक्सीडेड था शाहजहां टू द मुगल थ्रोन, ये सही बात है। द लॉ प्रेमोजेनिचर वॉज फॉलोड, ये नहीं था, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। औरंगजेब थे वो सक्सीडेड किए शाहजहां को टू द मुगल थ्रोन, बट द रूल ऑफ primogeniture was not followed by where the oldest son inherited the father estate. He succeeded the throne by force. There were no clear rules of succession. It was the subject of power. Dara was the eldest and the Aurangzeb was the third son of the Shahjahan. Who of the following Mughal emperor was coronated twice? वो कौन है आपका, औरंगजेब है। पहली बार कहाँ हुआ था, दिल्ली में, और दूसरी बार कहाँ हुआ था, देवराई के बैटल में, ठीक है। ठीक है, द बैटल ऑफ धर्मात जो था वो किसके बीच में लड़ा गया था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हरा दिया था, द किंग ऑफ जोधपुर, इन द बैटल ऑफ धर्मात इन 1658। धर्मात सिचुएटेड इन विच स्टेट, वो किस स्टेट में है आपका, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वेयर वाज दारा शिकोह बरीड, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। दारा शिकोह का जो था मर्डर हुआ था और उनको भेजा गया कहाँ, शाहजहां इन आगरा एंड बरीड इन द प्रीमाइसेस ऑफ ताजमहल। दारा स्टोरोज was buried in Humayun tomb in Delhi.
द ग्रेव ऑफ दारा वॉज बिल्ट इन कंपस ऑफ हुमायूंस टॉम इन दिल्ली। मुगल प्रिंस जो थे वो टुक रिफ्यूजी इन श्रीनगर गढ़वाल, वो कहाँ पे थे, वो सुलेमान सुको थे। विच सन ऑफ औरंगजेब रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर वीकनिंग हिज फादर पोजीशन अगेंस्ट द राजपूत, वो कौन थे, अकबर थे। विथ विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665, वो कौन थे, जय सिंह के द्वारा। विच मुगल एम्पर नोन एज जिंदा पीर, जिंदा पीर किसको कहा जाता था, औरंगजेब को कहा जाता था। कौन से यूरोपियन ट्रेवलर थे जो भारत आए थे ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, वो थे कौन, पीटर मुंडी थे। शाहजहाँ के समय में आए थे, और विलियम हॉकिंग्स और थॉमस रो जो आए थे वो जहांगीर के टाइम में आए थे, ठीक है ना। औरंगजेब और जो ट्रेवलर जो था औरंगजेब के टाइम में कोई नहीं आया था, नन। जब औरंगजेब विक्ट्री पा गए बीजापुर पे, वो कब पाए थे, 1686 में। टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द औरंगजेब कनकर्ड इन डेक्कन वेयर अहमदनगर एंड बीजापुर, बिदार एंड बीजापुर, बीजापुर और गोलकोंडा पे पाए थे। ये कह रहा है मैप को देखते हुए किंगडम कौन सा था, तो इस हिसाब से क्या था, ये मैप बताता है कि किंगडम ऑफ औरंगजेब एट द टाइम ऑफ डेथ 1707 इंक्लूडेड बीजापुर और गोलकोंडा था, ये वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हु वाज रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687, वो कौन है, अब्दुल हसन कुतुब शाह। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स इन द मुगल आर्मी, वो कौन था, औरंगजेब के समय में था। मुगल एम्परर जो थे इनको अपॉइंट किया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिशियल वॉज, वो कौन था, औरंगजेब था। किसने रीइम्पोज किया जजिया, वो था औरंगजेब। द मीटिंग ऑफ जिहाद कैरी ऑन भाई औरंगजेब इज, वो क्या था, दारुल इस्लाम था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज जिंदा पीर, जिंदा पीर को कहा जाता था, औरंगजेब को कहा जाता था। क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा टॉम ऑफ बीबी, वो कहाँ बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया, औरंगजेब के द्वारा, लाल किला के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम आर कॉल्ड द सेकंड ताजमहल, वो क्या है, टॉम ऑफ रबिया उद्दुरानी का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब, मेहरुनिसा थी। टू होम औरंगजेब बेस्टोड अपॉन द टाइटल ऑफ साबित उस जमानी, वो कौन थी, जहान आरा थी। सेंट रविदास जो थे एसोसिएटेड थे किसके पीरियड से, वो औरंगजेब के पीरियड से कंटेम्परेरी थे। मोती मस्जिद जो है लाल किला में जो दिल्ली में है, वो कहाँ बनवाया था, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों औरंगजेब का जो चैप्टर है हमारा थ्योरी विथ आपका, उसके थ्योरी के साथ उसका एमसीक्यू भी हमने कवर कर लिया है। अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आइए उस पर भी एक नज़र अपनी डाल लेते हैं। ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज द सरकार। ईस्ट सूबा प्रोविंस हैज डिवाइडेड इनटू सेवरल सरकार डिस्ट्रिक्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस। सरकार जो है फॉर द डिवाइडेड इनटू परगना एंड महल। द लीडिंग ऑफिसर ऑफ ईस्ट सरकार वेयर फौजदार, अमल गुज्जर, काजी कोटवाल, बिदकुच्ची और खजनदार। मीर बख्शी जो था वो किसका हेड था, किसका, मिलिट्री डिपार्टमेंट का। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल उन्होंने फिक्स किया गया मंथली सैलरी ऑफ सोल्जर बाय साइनिंग द सर्टिफिकेट कॉल्ड सरखत। अपार्ट फ्रॉम देयर वेयर बख्शीज इन द प्रोविंसेस हु वर्कड अंडर द कंट्रोल ऑफ मीर बख्शी। मुगल रिजाइम में मीर बख्शी को जो थे सुपरवाइज करते थे लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल को, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलरी ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। सर जदुनाथ सरकार जो थे स्टेटेड मीर बख्शी एज वेतनाधिकारी, पे मास्टर जिसको कहते थे। द वर्क एज पे मास्टर वॉज नॉट रेगुलर एंड परमानेंट ऑफ मीर बख्शी। द ड्यूटी ऑफ द पे मास्टर वॉज दीवान तन, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन एडिशन टू द सोल्जर ऑफ मनसबदार, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में इन एडिशन टू द सोल्जर ऑफ मनसबदार देयर वर अदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैवलरी हु वर कॉल्ड अहाडी, दखीली
अहादी जो थे उनको रिक्रूट किया गया, रिक्रूटेड बाय किंग, वॉज यूज्ड एज बॉडीगार्ड। और जो दखीली सोल्जर थे उनको रिक्रूटेड करवाया गया एम्परर, ऑल्दो दे वर केप्ट इन द सर्विस ऑफ मनसबदार। प्रोस्टिट्यूट जो थी वेर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिटी एंड सिटी सेटल्ड एट सम अदर प्लेस नेम्ड, ठीक है ना, उनको अलग जगह रखा जाता था। शैतानपुरी जो था, जिसे शैतानपुरी कहते थे, अकबर ने इम्प्लीमेंट कराया ड्यूअल सिस्टम, जात और सवार, इन 40th ईयर। जो वर्ड था माल इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी रिलेटेड था लैंड रेवेन्यू से। टोबैको क्या है? टोबैको वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय पोर्टुगीज इन 1605 AD। आफ्टर द टोबैको बिकम very popular in the public of India. In few years, the habit of smoking tobacco became so prevalent among people that avoid its harmful habit. 1617 AD में जहांगीर ने प्रोहिबिट करा दिया इस टोबैको को और इशू किया ऑर्डर टू बैन इन 1617 AD द टोबैको। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इशू करता था ग्रांट, मदद ए मास फॉर द स्कॉलर एंड ऑल्सो टू द रिलीजियस पर्सन। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड Sayuragal. All the donated land were inspected by Sadra, and the Sadra were also had the duty to keep an eye on donation and that they are misused. These lands were not transferable. ये land जो थी ट्रांसफरेबल नहीं थी and generate possessed a right of inheritance over it. During the Mughal period, the mint officer are called daroga. Gold, silver and copper coin are minted उस समय होते थे। अकबर ने इशू किए कॉइन्स विद द फिगर ऑफ राम एंड सीता एंड राम सिया इंस्क्राइब्ड ऑन देम इन देवनागरी, ठीक है। सिल्वर कॉइन जिसको कहा जाता था रुपया या, और दाम जो था, दाम वाज कॉपर कॉइन, दाम क्या था? कॉपर कॉइन था, इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। जहांगीर ने मार्क किया था फिगर इस कॉइन पे नूर जहाँ के नाम का, ठीक है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ हिज सम कॉइन्स, ठीक है। सम ऑफ द कॉइन्स वे आर मार्क्ड विद द इमेज ऑफ होल्डिंग कप ऑफ अल्कोहल इन हैंड। द मीनिंग ऑफ वर्ड बनताई जो था वो मेडिवल पीरियड से एसोसिएटेड है, वॉज अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू इन विच रियल प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड पीजेंट। चलिए दोस्तों, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने देख लिया है। इसकी कुछ MCQ देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। व्हाट वाज द डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन? वो क्या था? सरकार उसे कहते थे, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? उसे सरकार कहते थे। रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस असेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ साइज? सबसे छोटा क्या था आपका? परगना था, फिर क्या था? सरकार था, फिर क्या था? सूबा था। चलिए, तो ए ऑप्शन नंबर क्या होगा इस हिसाब से सही हो जाएगा। मुगल जो थे डिवाइड किए थे सूबा, प्रोविंस, इन इच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सरकार, डिस्ट्रिक्ट, और सरकार वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास और महल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ द आर्मी इन मुगल सर्विस, मुगल पीरियड? वो क्या है? मीर बख्शी होते थे। मुगल एरा में जो ड्यूटी था मीर बख्शी का वो क्या था? सुपरविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज एन फिजिशियन इन द मुगल सर्विस? वो कौन था? मनुकी था। स्टेटमेंट देखना है। आदिश जो था, वी आर दोज ट्रूप हु offered their service singly, did not attach themselves to any chief, head of the emperor, their immediate colonel। देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। अहदीस जो था वो पार्ट था अकबर के स्टैंडिंग आर्मी का, ऑफ few thousand, were equipped with the several horses and had a reputation for being excellent archers। These gentlemen at arms were single men having no following of mounted retainers। अकबर अहदीस वे आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एम्परर। ओके, समझ में आया, ठीक है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुहतासिब, वो क्या चीज़ है? ये ऑफिसर इंचार्ज है पब्लिक मोरल के। देखिए BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मेडिवल के टाइम में वाई वाज द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस? फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, टू इस्टेब्लिश रिलीजियस हार्मनी, इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए 65 BPSC में आया हुआ ये क्वेश्चन है। मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था मेनली किस लिए हुआ था? अफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ही क्या है, 2019 BPSC में आया हुआ सवाल हो गया। इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम? देयर वर 33 डिवीजन, वो तो था ही, 33 क्लास थे। देयर गॉट कंडीशनल और मुल्खत रैंक, सही है। देयर सवार रैंक कुड एक्सीड द जाट रैंक, ये गलत है, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही होगा। मनसब जो थे, रैंक का मतलब था रैंक और स्टेटस, ठीक है, रैंक और स्टेटस था। मनसबदार और ऑफिशियल होल्डर जो थे वो 33 क्लासेस में क्या थे, डिवाइडेड थे। वे आर पेड इन कैश अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव ग्रेड्स, ठीक है। देयर वेर एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल, देयर वेर एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल, particularly when Mansabdar were serving in a different terrain amidst the rebels. In such cases, state often increased the Sawar rank without altering the Jat rank. Obviously, the system was not static one. It changed the meeting of circumstances. The reform was the use of conditional rank, मसूबा जिसे कहते थे, which meant the increase of Sawar rank by temporary period, ठीक है। अब ये मनसबदारी के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना, हम लोग को चूज़ करना है। जाट और मनसब जो था डिजिग्नेशन ग्रांट किया जाता था, एकदम सही है। मनसबदार वर हेरिडिटरी, ये नहीं था। देयर वर 3 क्लासेस ऑफ मनसबदार, मनसबदार के 3 क्लासेस थे, एकदम सही है। अब और क्या था, सैलरी वे आर पेड ऑन द बाय दीवान ऑफिस, दीवान ऑफिस से नहीं दिया जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विद रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम विच होता है। देखिए इसका मेन फीचर देख लेते हैं मनसबदारी का एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, ये यहाँ से सवाल बनने के फिर से चांस हो जाता है। किंग हिमसेल्फ अपॉइंटेड मनसबदार, ही कुड नॉट enhance mansab, lower or it remove it. मनसबदार कुड नॉट आस्क टू परफॉर्म सिविल और मिलिट्री एक्सरसाइज, एकदम सही है। 33 कैटेगरीज है मनसबदार के, ठीक है। द लोएस्ट मनसबदार कमांडेड 10 सोल्जर विद द हाइएस्ट हैड 10,000 सोल्जर, ठीक है। द सैलरी ड्यू टू सोल्जर वॉज एडेड टू द पर्सनल सैलरी ऑफ द मनसबदार, मनसबदारी सिस्टम जो था वो हेरिडिटरी नहीं था, ठीक है। इन एडिशन टू मीटिंग द पर्सनल expenses, the Mansabdar had to maintain his salary stipulated quota of horse, elephant, camels और मुमेल्स और guards। समझ में आया? Now come to question number 15। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वोकैबुलरी, जिसका वोकैबुलरी है माल, रिप्रेजेंट क्या करता है, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको वाज, किसने कराया था, वो औरंगजेब ने बंद कराया था। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मदद ए माश इंडिकेट करता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या कहता है, रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लर्नड पर्सन के लिए कहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, और सर्टन रीजन, मनसबदारी सिस्टम जो एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द मुगल एम्परर टाइम में था, एकदम सही है। मनसबदारी जो था स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, हुआ तो था लेकिन मनसबदारी, देखिए इसका क्या है ना, ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम जो था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मुगल एम्परर में। ये सिस्टम डिटरमाइन करता था रैंक ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। मनसबदार का मतलब था, होता था क्या, अपॉइंट करे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एंड द किंग हिमसेल्फ अपॉइंट द मनसबदार, किंग खुद ही मनसबदार को अपॉइंट करता था, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन में नहीं होता था, वो अपने हिसाब से करता था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आ जाते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ये है असर्शन रीजन का क्वेश्चन, ठीक है। पहला ए है, जो ए पॉइंट है वो लिखा है नॉट ऑल द मनसबदार वेयर मिलिट्री ऑफिसर, ये एकदम सही था, सारे मनसबदार मिलिट्री ऑफिसर नहीं थे। दो हु हेल्ड हाई सिविल पोस्ट अंडर द मुगल्स वेयर ऑल्सो मनसबदार एंड वेयर ग्रेडेड अकॉर्डिंगली, एकदम सही है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेड के अकॉर्डिंग ही था, तो बी ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, वो कहता है क्या कि जो मुगल एम्परर थे वो ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट, एकदम सही था। द वाइटलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स मिलिट्री पावर, तो ये मिलिट्री पावर पे भी डिपेंड करता था और मिलिट्री स्टेट भी था, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ये ऑफिसर हैं और असाइन ड्यूटी हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। दीवान तन जो था लुकिंग फॉर द जागीर एंड सैलरी से रिलेटेड था, ठीक है ना, दीवान तन जो था। मुस्तरफ़ी जो था, मुस्तरफ़ी वो एग्जामिन करता था इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, एग्जामिन करता था इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द
स्टेट, ठीक है ना। मुशरिफ जो था उसका मतलब था लुक आफ्टर द ऑफिस, और वकियानवीस जो था वो मेंटेन करता था प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेंटेन इवेंट और फरमान्स। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इशूड सम कॉइन विथ फिगर राम एंड सीता एंड देवनागरी लेजेंड राम सिया। वो कौन थे? अकबर था, अकबर के टाइम में होता था। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वाज ऑल्सो नोन, उसको दम कहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। दम जो था कॉपर कॉइन था, ठीक है। देसाई जो था रेवेन्यू कलेक्टर होते थे। दीवान जो होते थे वो रेवेन्यू ऑफ चीफ प्रोविंस होते थे। लेकिन जो जरीब होता था, जरीब जो होता था वो किस लिए यूज़ होता था? लैंड मेजरमेंट के लिए यूज़ होता था, लैंड मेजरमेंट। तो ये इट्स नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स, इट्स अ टाइप ऑफ लैंड मेजरमेंट, जरीब। तो डी ऑप्शन जो है का ये नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो मीनिंग, वर्ड का मीनिंग था बानताई ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वॉज, जो वर्ड है बानताई मेडिवल पीरियड में, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था क्या? हेल्थ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, बानताई। अब असर्शन रीजन पे बात कर लेते हैं। असर्शन रीजन पे असर्शन क्या था? अकबर लाइक शेर शाह ट्राई टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट, ठीक है, सही है। एज इन शेर शाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर टाइम वॉज द दम। ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? एक्सप्लेन भी क्या करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द टर्म है चकला यूज़ होता है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के सोर्स में। ये क्या चकला क्या है? एक टेरिटोरियल यूनिट है जो कि सूबा और परगना के यूनिट होता है, ठीक है ना। एक टेरिटोरियल यूनिट है सूबा और परगना में, बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार, ठीक है ना, सरकार के साथ आइडेंटिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्या मुगल इंडिया के रिगार्डिंग क्या डिफरेंस था जागीरदारी और ज़मींदारी में? देखिए IAS प्री 2019 में आया हुआ सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। जागीरदार वे क्या होते थे? ये होल्डर होते थे ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लीव और जुडिशियल पुलिस ड्यूटीज, वेयर जमींदार वेयर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट विदाउट अपॉइलेशन। ये क्या था? उल्टा है एकदम। टू परफॉर्म एनी ड्यूटी ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडिटरी एंड हैड रेवेन्यू राइट्स टू जमींदार वेयर नॉट हेरिडिटरी। ये क्या उल्टा है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अकबर के पीरियड में जितनी भी टेरिटरीज थी वो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, एक था खालिसा, एक थी जागीर। रेवेन्यू वाज द फर्स्ट वेंट टू द इंपीरियल ट्रेजर एंड फ्रॉम द जागीर वेयर असाइंड टू जागीरदार्स इन ल्यू ऑफ देयर सैलरी इन कैश ऑफ रख्द अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, ठीक है ना। तो पहले जो आता था पैसा, देखिए दो तरीके का ब्रॉडली डिवाइडेड था क्या टेरिटरी, खालिसा और जागीर में। जो रेवेन्यू जो था वो पहले आता था इंपीरियल ट्रेजर में, वहाँ से जागीर में जाता था और वहीं से असाइन होता था जागीरदार को सैलरी इन कैश जिसे हम रक्त कहते थे, उनके रैंक के अकॉर्डिंग। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू यूटिलाइज द सेम फॉर देयर सैलरी एंड टू मीट देयर मिलिट्री ऑब्लिगेशन। जो जुडिशियल पुलिस जो फंक्शन करता था परफॉर्म लोकली बाई जमींदार, जो जुडिशियल पुलिस फंक्शन जो था परफॉर्म कराया जाता था लोकली बाय जमींदार। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जागीर सिस्टम वॉज शिफ्टिंग ऑफ जागीर होल्डर फ्रेम फ्रॉम वन जागीर टू अनदर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। दिस सिस्टम वॉज ट्रांसफर चेक्स द जागीरदार फ्रॉम डेवलपिंग लोकल रूट्स। जो जागीर थे वो क्या था? ट्रांसफरेबल था एंड कुड नॉट बी सीज टू। जागीरदार ऑन द अदर हैंड वो क्या था? हेरिडेटरी था। जमींदार जो था वो प्रेजेंट इन प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर एंड हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ मुगल इंडिया। जो वर्ड जमींदार है वो डिराइव किया गया दो पर्शियन वर्ड जमीन, लैंड, और दार मतलब होल्डर से। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनाल्स वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रजवा एंड फिरोज शाह। वो थे शाहब नहर जो था वो नहर था, उसका वो कंस्ट्रक्ट कराया गया था, ठीक है ना, और रिस्टोर कराया गया था रजवा ऑफ फिरोज शाह, ठीक है। मुगल एरा जो था शाहब या साहिब कैनाल का वो कंस्ट्रक्ट कराया गया था रेनविगरेटिंग ऑफ फिरोज शाह कैनाल, जिसे हम राजबवा कहते हैं। इन द टाइम ऑफ अकबर फर्स्ट शहाबुद्दीन खान जो थे, शहाबुद्दीन खान क्या थे?
और लेटर नरुद्दीन मोहम्मद जो थे कंस्ट्रक्ट कराए कैनल को। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर गवर्नर ऑफ दिल्ली, शहाबुद्दीन खान जो थे रिपेयर किए थे कैनल इरिगेशन पर्पस और चेंज किए थे इनका नाम शाहब कैनल पे। म्यूज़िक पेंटिंग ऑफ मुगल, म्यूज़िक एंड पेंटिंग ऑफ मुगल। अब अगला टॉपिक है म्यूज़िक पेंटिंग एंड मुगल। हम लोग ने क्या हुआ मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देख लिया है। अब हमें क्या देखना है, म्यूज़िक एंड पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड। ठीक है, वॉर्स जो सीन था या बर्ड एनिमल्स एंड सीनरियो वेयर इल्यूमिनेटेड इन मुगल पेंटिंग। वार सीन हो गया, ठीक है, बर्ड्स एनिमल्स सीनरियो जो हो गया वो मुगल पेंटिंग में क्या है, इलिस्ट्रेटेड है। हुमायूं ने इसको स्टार्ट किया एंड द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है ना, इनके पास दो डिस्टिंग्विश्ड पेंटर थे, ख्वाजा अब्दुस थे, समाद और मीर सैयद थे। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एग्जाइल इन पर्शिया एंड अफगानिस्तान, फ्रॉम दिस आर्टिस्ट हुमायूं एंड हिज सन अकबर लर्न लेसन इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक है, अकबर गॉट अ नंबर ऑफ टेक्स्ट पेंटेड। द फर्स्ट वन वॉज दास्ते आमिर हमजा। ऑलमोस्ट 50 पेंटर थे टुक पार्ट इन इट्स प्रिपरेशन। फर्स्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ सैयद अली, लेटर अंडर अबू समद। देर वेयर अबाउट 1400 पेंटिंग्स इन इट। 1400 पेंटिंग था उसमें। ठीक है, दिस बुक वॉज मैंशन इन द हीरोइक वर्क इन द पर्शियन हीरो अमीर हमजा, जो अंकल थे किसके, मोहम्मद साहिब के। द आर्ट ऑफ मुगल पेंटिंग रीच्ड इज ग्रेट हाई ड्यूरिंग द जहांगीर रिजाइम। जहांगीर वॉज अ हाईली स्किल्ड कॉन्शियसनर ऑफ पेंटिंग। अबुल हसन जो थे, जिनको टाइटल मिला नादिर उल जमा, उस्तार मंसूर, नादिर उल असर, फ़रूक बेग, बिशाह दास, अख्तर रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये जो थे ये सारे क्या थे, पेंटर्स थे। वो फेमस मेन आर्टिस्ट थे जहांगीर कोर्ट में। अबुल हसन जो थे उन्होंने क्या किया, पेंटिंग किया जहांगीर कोरोनेशन में। ठीक है, जहांगीर के कोरोनेशन का। द पेंटिंग इज इंस्क्राइब्ड इन द जहांगीर ऑटोबायोग्राफी तुजुक के जहांगीरी ऑन द मेन पेज। जहांगीर के पीरियड जो था वो गोल्डन एज ऑफ था मुगल पेंटिंग का। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल जो था डिफरेंट स्टाइल थे मेडिवल पेंटिंग के। औरंगजेब ने बैन किया था म्यूजिक एज फाउंड इन एंटी इस्लामिक, बट ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मैक्सिमम बुक हैज बीन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वेर रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, डिस्पाइट विन द एंटी म्यूजिक, औरंगजेब वॉज अ स्किल्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हु यूज टू प्ले इंडियन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वीना। औरंगजेब जो थे वो स्किल्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे और वो वीना को क्या करते थे, प्ले करते थे। टोडी, जिसको रागा कहते थे, यूज टू साइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। इट वॉज संग बाई भातोज और चरन्स इन द एम्पर कोर्ट। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, तानसेन और स्वामी हरिदास जो थे वो प्रोमिनेंट ध्रुपद सिंगर थे। तानसेन जो थे वो फेमस म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट में। तानसेन का ओरिजिनल नाम था क्या, रामतानु पांडे। तानसेन का ओरिजिनल नाम था रामतानु पांडे। ही वॉज वन ऑफ द अकबर्स नवरत्नास। बिफोर कमिंग टू द कोर्ट ऑफ अकबर, तानसेन वॉज इन द कोर्ट ऑफ किंग रामचंद्र ऑफ रीवा। फ्रॉम द अकबर समन्ड हिम टू हिज कोर्ट एंड गेव अ वेरी हाई पोस्ट। ठीक है, अकबर ने दिया तानसेन को एक टाइटल, वो टाइटल का नाम था कंथा कंठा कंठा भ्रान विलास, भरानी विलास। ठीक है, कंठा भरानी विलास का जो टाइटल है तानसेन को दिया गया अकबर के द्वारा। विलास खान जो थे वो चीफ म्यूजिशियन थे जहांगीर के कोर्ट में। प्रोमिनेंट सिंगर थे कोर्ट के कौन, शाहजहाँ के, वो थे जगन्नाथ, रामदास, सुखेन, सुरसेन, लाल खान, दुर्गन खान और ढेर सारे भी जो इसमें थे क्या थे, प्रोमिनेंट सिंगर थे। ख्याल सिंगिंग जो था वो पॉपुलर हुआ इसी पीरियड में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। तो किशनगढ़ स्टाइल ऑफ राजस्थान जो है, किशनगढ़ स्टाइल ऑफ राजस्थान इज नोन एज थ्रू आउट द इंडिया फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ कोटेशन पेंटिंग। राजा जसवंत सिंह है वो एक रियल इंस्पिरेशन बिहाइंड द फेमस किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग। जो मेन आर्टिस्ट हैं दिस स्टाइल वेयर आमिर चंद, छोटू, भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम और भी ढेर सारे जो हैं वो मेन आर्टिस्ट हैं। जो फेमस पोर्ट्रेट ऑफ बनी ठनी का है वो किशनगढ़ स्टाइल में बना है, जिसको नीलचंद ने बनवाया है। क्या स्टेटमेंट है सही मुगल पेंटिंग के द्वारा, उसमें क्या क्या था, बैटल का सीन भी था, एनिमल बर्ड नेचुरल सीन था और कोटियर डिपिक्टिंग भी था। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं।
द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग जो था वो लेड बाय, वो किसके द्वारा बनाया गया था? मुगल पेंटिंग वो बनवाया गया था हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो मुगल स्कूल जो है पेंटिंग का फाउंड बाय स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द वेरियस स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग वे आर नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग? वो कौन थी? काली घाटी का पेंटिंग। किसने इलिस्ट्रेट किया था दास्ते आमिर हमज़ा? वो किया था अब्दुस समाद ने किया था। दास्तान आमिर हमज़ा जो है अब्दुस समाद ने किया था। देखिए बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर जहांगीरी पेंटर्स? कौन है? अब्दुस समाद है, अब्दुल हसन है, अकवा रिज़ा हैं या मीर सैयद अली हैं? तो ये कौन कौन है? जहांगीरी पेंटर जो हैं वो अब्दुल हसन है और मीर सैयद अली नहीं है, अकवा रिज़ा हैं। जहांगीरी पेंटिंग की बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है ड्यूरिंग द हुज रिजाइम मुगल पेंटिंग वॉज फ्लरिश्ड? वो कौन कौन था? मुगल पेंटिंग के समय में कौन सा फ्लरिश था? वो था आपका जहांगीर के टाइम में। मुगल पेंटिंग फ्लरिश हुआ जहांगीर के टाइम में, ठीक है। मुगल पेंटिंग जो था रीच इट्स जेनिथ अंडर, सबसे ऊंचे पे कब था? वो जहांगीर के टाइम में सबसे पीक पे था। हु अमंग द मुगल एम्परर शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? वो कौन है? जहांगीर के टाइम में। जहांगीर जो था पर्टिकुलर इनकरेज किया पेंटिंग डिपिक्टिंग इवेंट्स of his own life, individual portraits and studied of birds, flowers and animal. जहांगीर जो था मेनली पैटर्नाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स? वो किस में था? पेंटिंग में था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट स्टाइल इन आर्ट। वो क्या डिपिक्ट करता है? पेंटिंग को डिपिक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मुगल रूलर जो ने स्टेब्लिश किया कारखानास ऑफ पेंटिंग, वो किससे रिलेटेड थे? अकबर के। अकबर जो थे वो वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग हिज रिजाइन। देखिए 66 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के सवाल बीपीएससी पूछा करता है। अकबर ने वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड ड्यूरिंग हिज रिजाइन पेंटिंग वॉज ऑर्गेनाइज एज एन इम्पीरियल एस्टेब्लिशमेंट और कारखाना कॉल्ड तस्वीर खाना वेयर द पेंटर वर्कड, ठीक है ना, तस्वीर खाना उसे कहते थे, कारखाना या तस्वीर खाना। किशनगढ़ जो था वो फेमस किस लिए था? वो पेंटिंग के लिए फेमस था। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ हाल ही का सवाल है, मतलब 6-7 साल पुराना सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मास्टर्ड बाय औरंगजेब? वो क्या था? वीणा, ठीक है, वीणा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बीपीएससी में इस तरीके का सवाल आने का पूरा संभावना है, क्योंकि औरंगजेब का एक अलग ही इतिहास है। जो राग था संग अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे आपका, जो अर्ली मॉर्निंग में कहते थे उसे हम कहते थे तोड़ी, कहते थे तोड़ी। तोड़ी राग इज़ यूज टू संग इन द मॉर्निंग। तोड़ी इज़ अ हिंदुस्तानी और क्लासिकल राग गिवन टू द तोड़ी throat, one of the 10 notes of the Hindustani classical music. It was sung with the minstrel of the emperor court. Musician like Tansen, Baiju Baura, Gopal Nayak, जो रिसीव किया ट्रेनिंग फ्रॉम द मास्टर स्वामी हरिदास को द्वारा। हाउ मेनी म्यूजिक वर्शिप सेंटर फेयर बीन सेटअप बाय द फॉलोअर ऑफ स्वामी हरिदास? वो कितने थे? कुल मिला के 5 थे। अब कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे थे। ध्रुपद जो सिंगर थे, रिजाइम थे अकबर के, वो कौन कौन थे? ध्रुपद सिंगर, वो तानसेन थे, हमने पढ़ा था, और हरिदास थे। ये क्या था? लीडिंग ध्रुपद सिंगर थे अकबर के रीजन में। विलास खान जो था वो मेन सिंगर थे जहांगीर के रीजन में, ठीक है ना, याद रखेंगे। मियाँ तानसेन के बारे में पूछ रहा है। तानसेन का टाइटल जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? एम्परर अकबर के द्वारा दिया गया था, सही बात है। तानसेन कंपोज ध्रुपद इन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, नहीं। तानसेन ने कंपोज किया था सॉन्ग इन हिट्स पेट्रोन्स, नहीं। तानसेन ने इन्वाइट किया था बहुत ढेर सारे रागास, नहीं। ये दोनों सब का ऑप्शन क्या है? गलत है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। टाइटल जो दिया था तानसेन को वो दिया गया था राजा विक्रमजीत सिंह के द्वारा, जो ग्वालियर के थे। अकबर ने उन्हें टाइटल दिया था मियाँ का। तानसेन जो थे 1500 से 1586 के बीच में थे। रिफर्ड टू एज अ तानसेन और रामा तानो फॉर वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। ही वॉज अ बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ही बिगन हिज कैरियर इन द स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ इन द कोर्ट एंड पेट्रोनेज ऑफ हिंदू किंग ऑफ रीवा राजा रामचंद्र सिंह। वेयर तानसेन इज क्या है? म्यूजिकल एबिलिटीज थी उनके पास, और स्टडीज गेंड इन द विड्सपर्ट फेम। Thus fame got its attention in the Mughal Emperor Akbar, who sent messenger to Raja Ramchandra Singh, requesting Tansen to join musician at Mughal court. He was a Vaishnav musician, वो वैष्णव म्यूजिशियन भी थे।
कहाँ पे तानसेन का टॉम जो है लोकेटेड है, वो है आपका ग्वालियर फोर्ट में। तानसेन जो थे कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट कंपोजर म्यूजिशियन इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हमने देख लिया है। ही इज लिविंग ड्यूरिंग द ग्रेट पीरियड ऑफ मुगल इंडियन किंग अकबर के रिजाइम में ये थे, इनका मतलब रिजम था। ही वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है, वो नौ रत्न में से एक भी थे तानसेन। ही सर्व्ड एज अ कोर्ट ऑफ म्यूजिशियन ऑफ द किंग रामचंद्र रीवा, भाट रीजन के जो थे, भाटा रीजन के थे, एंड देन एम्पर अकबर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उनका जो टॉम है वो लोकेटेड कहाँ है, ग्वालियर के पास, नियर द टॉम सेंट ऑफ हजरत घौस के पास है, ठीक है ना। टीचिंग इन्फ्लुएंस्ड हिम टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। Who among the following kings had been given patronage to तानसेन आफ्टर अकबर? वो कौन है, राजा रामचंद्र सिंह और भट्टा हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन क्या था, वो क्या था, रामातानु पांडे था नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है दोस्तों, ये किसी को आएगा तो आएगा वरना किसी को नहीं आएगा, ये फैक्ट ही याद हमें करना है। कौन सा मुगल रूलर था जिसने लर्न किया था हिंदू म्यूज़िक फ्रॉम लाला कलावत से? ये किसने किया था, वो अकबर ने सीखा था, ठीक है। ठीक है, मुल्ला दौड़ जो थे, मुल्ला दौड़ किससे रिलेटेड थे, आपका चंद्रयान से रिलेटेड थे। और दामोदर कवि जो थे वो पद्मावती कथा से रिलेटेड थे, ठीक है। सोमनाथ जो है वो अशिका से रिलेटेड है, और अमीर खुसरो राग विभोद से रिलेटेड है, ठीक है। ये आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए हमारा जो था मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ने कर लिया था, और अभी हम लोग ने हाल ही में ख़त्म क्या किया है, अपना जो टॉपिक ख़त्म किया है मुग़ल पेंटिंग, म्यूज़िक और पेंटिंग जो मुग़ल पीरियड का था वो अपने चरम पे कब था, कैसे था, और कौन कौन से फेमस कंपोज़र थे, सिंगर्स थे उस समय के रिजाइम में, उनको भी हम लोग ने देख लिया। अब जो आके एक बार नज़र अपना डाल लेते हैं मुग़ल लिटरेचर पे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर्स हैं उनको देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मजमा उल बहरीन है, मजमा उल बहरैन वो दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया। तुतुल मासिर है वो हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया। आलमगीर नामा जो है वो मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया। नक्शा ए दिलकुशा जो है वो भीमसेन के द्वारा लिखा गया। चार चमन जो है वो चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया। फतूहत ए आलमगीरी जो है वो ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया। खुलसत उत तारीख जो है वो सुजरनाई भंडारी के द्वारा लिखा गया है। तारीख है दिलखुशा जो है वो भीमसेन कायस्थ के द्वारा लिखा गया है। तबकाते अकबरी जो है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। इकबाल नामा जहांगीरी जो है वो मुतमाद खान के द्वारा लिखा गया है। बादशाह नामा या कहते हैं बादशाह नामा उसे अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। तुजू के बाबरी जो है वो बाबर के द्वारा खुद लिखा गया है। तारीख है शेर शाही जो है वो अब्बास खान सरवानी के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। ये हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, म्यूज़िकल लिटरेचर। अब इसके आइए एमसीक्यू को देख लेते हैं। गुलबदन बेगम जो थी वो डॉटर किसकी थी, वो बाबर की डॉटर थी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर द मुगल पीरियड, वो कौन है, गुलबदन बेगम थी। किसने लिखा है, हुमायूं नामा जो है वो लिखा है आपका गुलबदन बेगम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तबकाते नासरी है वो मिनाज ए सिराज जुज़मानी के द्वारा लिखा गया है, एकदम सही है। तारीख फिरोज शाही जो है शम्स से सिराज अफीफ़ के द्वारा लिखा गया, एकदम सही है। तुगलकनामा जो है वो इब्न बतूता के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, खुसरो के द्वारा लिखा गया। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत आपका। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, इब्न बतूता के द्वारा नहीं। और हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, अभी हमने देखा, तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसने बाबरनामा को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, वो कन्वर्ट किया है लेडन एरस्किन ने कन्वर्ट किया है। बाबरनामा को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है विलियम एरस्किन ने। दिल्ली एजुकेशनल सेंटर जो था जिसको हम मदरसा ए बेगम कहते हैं, वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा कराया गया, वो महामंगा के द्वारा करवाया गया। महामंगा ने बिल्ड करवाया था खैरुल मंजिल मॉस्क जो था वो एक मुग़ल आर्किटेक्चर है,
लेटर इसको हम बाद में क्या कहते हैं, मदरसा। नाउ स्टैंड फॉर अपोजिट टू पुराना किला दिल्ली। और आज के समय में हम उसको क्या कहते हैं, आज के समय में हम उसको कहते हैं मदरसा ए बेगम कहते हैं, जो कि महामंगा के द्वारा बनवाया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड हिट हितोपादेशा जो है को पर्शियन में किसने कन्वर्ट कराया है, वो करवाया ताजुल माली ने करवाया है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड बाय दारुशिको, वो कौन है आपका, मजमा उल बहरीन है, वो है। ठीक है, कुछ लिस्ट हैं और उनके किसने लिखा है वो आइए देख लेते हैं। हसन निज़ामी जो है वो ताजुल मासिर के द्वारा लिखा गया है। ख्वानदामिर जो है वो हुमायूं नामा लिखे हैं। मोहम्मद काजिम जो हैं वो आलमगीर नामा लिखे हैं। और भीमसेन ने लिखा है नरकुश ए दिलकुशा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, भीमसेन कायस्थ जो है लिखा है तारिक है दिलखुशा लिखा है भीमसेन कायस्थ ने। ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण जो है वो चाहर चमन ने लिखा है। ईश्वरदास नागर जो है वो किसने लिखा, फतुहा आलमगीरी ने लिखा, आलमगीरी को ईश्वरदास नागर ने लिखा है। सुजन राय भंडारी जो को ने लिखा है खुलसत उल त्वारिख लिखा है। देखिए दोस्तों, ये जो हमने ऊपर अभी बुक्स के बारे में पढ़ा है ये बहुत ही प्रोमिनेंट बुक हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। और ऑथर्स तभी याद होंगे जब इनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम ज़्यादा लगाएंगे और बार बार इसको रिपीट करेंगे, तभी जाके ये चीज़ें याद होंगी हमारे दिमाग में। देखिए कितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, देखिए इस हिसाब से। आलमगीर नामा जो है हम लोगों का वो किसने लिखा है, आलमगीर नामा हमने लिखा है कौन, मुंशी मोहम्मद काजिम ने लिखा है। ठीक है, आइए यहाँ देख ही लेते हैं, सबसे आसान से है, यहाँ से आपको बताना क्या होगा, आसान होगा। आलमगीर नामा किसने लिखा है, मुंशी मोहम्मद काजिम ने लिखा है। तबकासी नासरी किसने लिखा है, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। चाहर चमन जो लिखा है चंद्रबदन ब्राह्मण ने लिखा है। चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा है। और इकबाल नाम जहांगीरी जो लिखा है मोयताद खान ने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर हैज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन हिंदी लिटरेचर, वो कौन है, अब्दुल रहीम खान एक खाना ने लिखा है। इंडियन हिस्ट्री में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, वो कौन थे, एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, रीजन किसके, शाहजहाँ के रिजाइन में जो थे अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे शाहजहाँ के रीजन में। ठीक है, कौन है ऑथर शाहजहाँ नामा के ऑथर कौन है, वो हैं आपके इनायत खान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बाबर ने लिखा है तजुके बाबरी एकदम सही है। हुमायूं नामा जो लिखा है हुमायूं ने नहीं लिखा है हुमायूं नामा। देखिए तुजुके बाबरी जो है वो बाबर ने लिखा है। बाबर नामा जो है जिसे हम बाबर नामा भी कहते हैं जो तर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, हुमायूं नामा जो है वो गुलबदम बेगम ने लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तारीख़ शेर शाही जो है वो अब्बास खान ने लिखा है, तो शेरशाह ने लिखा है। और तबकाते अकबरी जो है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी ने लिखा है, तो ये इन्होंने नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा केवल सही होगा। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ मुगल टेक्स्ट मासीर अलिमगारी, वो कौन लिखा है, साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। अनवर ए सुहेली जो है ट्रांसलेशन ऑफ किसका ट्रांसलेशन है, पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है। अकबरनामा जो है कंपोज किया गया है अबुल फजल के द्वारा, कितनी बार, 7 साल में जब थे वो तभी नहीं उन्होंने किया था। कोर्ट लैंग्वेज द मुगल पीरियड का वो क्या था, पर्शियन लैंग्वेज था, ये याद रखिएगा। कोर्ट लैंग्वेज मुगल का था वो पर्शियन लगा था। अकबर जो प्रोटेक्टर थे बहुत सारे लैंग्वेजेस के, लेकिन इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ लैंग्वेज लाइक संस्कृत, अरेबिक, टर्की, ग्रीक, ऑल्सो अदर लैंग्वेज को भी किया। जो कोर्ट लैंग्वेज था मुगल का वो क्या था आपका, पर्शियन था। नस्तलिक जो था, नस्तलिक वॉज क्या था, एक पर्शियन स्क्रिप्ट था जो कि मेडिवल इंडिया में यूज़ होता था। जो पोएट हर्ट किंग हु रोड प्रेजिंग वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा अंडर द नेम ऑफ नागरी देवदास, वो कौन थे, राजा सावंत सिंह थे, उन्होंने किया।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फेमस वर्क रामचंद्रिका एंड रसिका प्रिया। किसने लिखा है? केशव ने लिखा है। दोस्तों हम लोग ने अपना अभी मुग़ल एम्पायर का जो आपका ये था जो फेमस बुक्स थे लिटरेचर थे उन्होंने हम लोग ने उनको पढ़ लिया है, किसने क्या लिखा है उसको हम लोग ने क्या किया है अब जान लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो मुग़ल डायनेस्टी का क्या है, एक मिनट दोस्तों, मुग़ल डायनेस्टी का हम लोगों का क्या है अब मिसलेनियस कुछ टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। आइए किसने लिखा है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है ना, आइए वो देख लेते हैं। जहांगीर ने क्या किया है, ठीक है, जहांगीर के समय में क्या है विलियम हॉकिंग्स आए थे, एकदम आए थे। अकबर के समय थॉमस रो नहीं आए थे। शाहजहाँ ट्रेवेनियर यहाँ आया था। औरंगजेब के समय मनुकी आए थे, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। थॉमस रो जब आए थे वो किसके रीजन में आए थे, वो आए थे जहांगीर के टाइम में, ठीक है। अरेंज करना है हमें ऑर्डर इन द करेक्ट कोड, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। सबसे पहले आए जहांदार शाह, फिर आए मोहम्मद शाह, फिर आए आपके अहमद शाह, फिर आए आपके आलमगीर सेकंड। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा उस हिसाब से सही हो जाएगा। हॉकिंग्स आए थे 1618 1611 एडी में आए थे। थॉमस रो जो आए थे वो 1615 से 1619 में आए थे। उसके बाद आए थे मनुकी 1653 से 1708 के बीच में। फिर आए थे राल्फ फिच जो 1585 से 1586 के बीच में आए थे, ठीक है। चलिए अब ये दे रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना जो अराइवल ऑफ इंडिया में। सबसे पहले कौन आया था, आए थे उस हिसाब से सबसे पहले आए थे राल्फ फिच आए थे 1585 से 1586 एडी में, ठीक है। सबसे आए थे कौन, राल्फ फिच आए थे, सॉरी सबसे पहले आए थे राल्फ फिच, ठीक है, 1585 1586 एडी में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे कौन, विलियम हॉकिंग्स आए थे। विलियम हॉकिंग्स कब आए थे, आपको अभी हमने ऊपर ही बताया है, आए थे ये 1608 से 1611 एडी के बीच में आए थे। फिर सर थॉमस रो आए थे, सॉरी निकलसन डॉटन आए थे। फिर उसके बाद आए थे सर थॉमस रो आए थे, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1614 में आए थे निकलसन डॉटन, ठीक है ना। कौन से ट्रेवलर थे, एलोबरेटेड डिस्कस करते हैं डायमंड एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। किसने ये कहा है, वो कहा है आपका जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवेनियर ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सा फॉलोइंग मुस्लिम रूलर है इस कोड को फॉलो करता है, मतलब उनके भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। सबसे पहले कौन आया, जहांगीर। उसके बाद कौन था, मोहम्मद शाह थे। फिर कौन थे आपके फिर उसके बाद थे कौन, अहमद शाह अब्दाली थे। फिर कौन थे, बहादुर शाह सेकंड थे, ठीक है। उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर लगाना है, ठीक है ना। चलिए इन्वेजन कैसे कैसे भारत में हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था वो जो चंगेज़ खान के द्वारा किया था इसके हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तैमूर का किया आक्रमण हुआ था। फिर जो आक्रमण किया था नादिर शाह ने किया था। फिर अहमद शाह अब्दाली ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली जो थे फॉर्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एकदम सही है ये। बाबर ने इस्टेब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत को, एकदम ये दिल्ली सल्तनत को बाबर ने इस्टेब्लिश किया था, वो ये सही नहीं है। शाहजहाँ ने किया था वॉर ऑफ सक्सेशन, नहीं। जहांगीर दे लव ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, ये एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा उस हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे स्लेव डायनेस्टी के, वो उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी स्लेव डायनेस्टी के थे, देखिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैसेकर्स ऑफ दिल्ली बाय नादिर शाह, ये कब हुआ था, ये हुआ था कब, ये हुआ था कब, 1739 में हुआ था। मस्कर ये लोगों ने मचा दिया था, ठीक है। और क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ये कब लड़ा गया था, 1526 एडी में हुआ था, ठीक है। और
सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है हेमू और अकबर के बीच में था 1556 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, वो 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो फेमस है भारतीय हिस्टोरियन, वो क्या है, वो उनको क्या कहते थे, हेमू कहते थे। द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज़ बीन यूज्ड, वो किसके नाम पे यूज होता है, पृथ्वीराज चौहान के नाम पे यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ थ्रो ऑफ लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी, वो सभी के सभी थे। परमार डायनेस्टी जो थे वो एक इंडियन डायनेस्टी है जो मालवा और उसके सराउंडिंग एरियाज था, और वेस्ट सेंट्रल इंडिया जो था वो था 9वें और 14वें सेंचुरीज के बीच में। मेडिवल बैटल जो था बार्डिक लिटरेचर जो है वो क्लासीफाई करता है अग्रवंशी राजपूत डायनेस्टी के लिए। नावाशांक चरित और पद्मगुप्ता प्रमबंध चिंतामणि मेरुदंड जो थे वो उदयपुर प्रशिष्टि के थे, जो कि पुराणमार डायनेस्टी से क्या करते थे, रिलेट करते थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1761 में लड़ा गया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो है वो आपका 1192 में किया गया था। डेथ ऑफ औरंगजेब हुआ था 1707 में, और डेथ ऑफ अकबर हुआ था 1605 AD। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सुल्तान ने रिप्यूटेड ऑफ अकबर ऑफ कश्मीर जिनको कहा जाता था, उनको कहा था सुल्तान जैनुल अबुद्दीन को कहा जाता था। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ था वो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बेलग्राम जो हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ खुसरो जो हुआ था वो जहांगीर के समय में हुआ था, और बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मराठा पीरियड से करेक्टली क्या मैच है, ड्यूरिंग मुगल एंड मराठा पीरियड क्या करेक्टली मैच है वो देख लेते हैं। बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था 1538 में हुआ था, नहीं। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज 1539 में हुआ था, नहीं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में हुआ था, सही बात है। बैटल ऑफ ख्वाजा नहीं हुआ था। बैटल ऑफ खेड़ 1699 में नहीं हुआ था, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर फोर्स ऑफ मान सिंह अंबर के थे उनके बीच में हुआ था 1576 में। बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ खेद जो हुआ था वो शाहू और ताराबाई के बीच में हुआ था, वो मराठा थ्रोन पे थी 1707 AD में। बैटल ऑफ खजवा जो था वो हुआ था मुगल एम्परर औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ था 1659 AD में। कंसिडर द फॉलोइंग बैटल, अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था 1528 में। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में। बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था वो 1565 में हुआ था। बैटल ऑफ कन्नौज जो था 1540 में हुआ था। इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सेशन ऑफ अकबर जो हुआ था 1556 AD में हुआ था। ठीक है, ग्रांट ऑफ चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ 1600 में। डेथ ऑफ शिवाजी कब हुआ था, 1680 में। और नादिर शाह कैप्चर किए थे दिल्ली, वो 1739 में किए थे। बैटल है और किस ईयर में हुआ था वो बताइए। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ था 1194 में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ इन्वेजन तैमूर का हुआ था 1398 AD में। बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में, और बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 AD में। तीसरा बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1500, देखिए तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 में, और बैटल ऑफ असीगढ़ जो हुआ था वो 1601 में हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो हम लोगों ने बताया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में था 1576 AD में। महाराणा प्रताप को जहाँ पे शिकस्त मिली थी। सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो होता मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ अस्सीगढ़ नहीं पता था, ये भी यहाँ से हम लोग को पता चल गया। देखिए प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं, ये UPPC से 98 का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बैटल ऑफ अस्सीगढ़ जो हुआ था मीरन बहादुर और अकबर के बीच में था 1601 में, जिसमें से मीरन बहादुर ने
असीगढ़ बाय द एंड द पोजीशन ऑफ असीगढ़ बाय द मुगल, मतलब मीरन बहादुर इसमें क्या हुए थे, डिफीट हो गए थे। बाबर ने क्या लड़ा था, बैटल ऑफ खानवा, ये एकदम सही है, उन्होंने ही लड़ा था। हुमायूं ने लड़ा था बैटल ऑफ चौसा, एकदम सही है। अकबर ने लड़ा था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। जहांगीर ने लड़ा था बैटल ऑफ बलक, जो बैटल ऑफ बलक लड़ा था वो शाहजहां ने लड़ा था, ना कि जहांगीर ने लड़ा था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, किसने लड़ा था, शाहजहां ने लड़ा था बैटल ऑफ बलक। अरेंज द फॉलोइंग बैटल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। सबसे पहले जो बैटल हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है। फिर बैटल ऑफ सरनाल हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ सरनाल, ठीक है। फिर हुआ था बैटल ऑफ धर्मात हुआ था। फिर हुआ था बैटल ऑफ जाजू। बैटल ऑफ सरनाल हुआ था गुजरात में ड्यूरिंग द गुजरात कैंपेन ऑफ अकबर इन 1772 AD, ठीक है ना, ठीक है। और अकबर डिफीटेड द इब्राहिम मिर्ज़ा को हराया था, ठीक है ना। शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को इन द बैटल ऑफ बिलग्राम इन 1540 AD, ठीक है। औरंगजेब ने डिफीट किया था फोर्स ऑफ दारा शिकोह इन द बैटल ऑफ धर्मात इन 1568 AD। बैटल ऑफ जाजू जो था हुआ था 1707 में बहादुर शाह 1 और मोहम्मद आजम के द्वारा। औरंगजेब का यहाँ पे क्या हुआ था, डेथ हो गया था उस समय। सरमाल हुआ था गुजरात में, जहाँ पे गुजरात कंपेन कर रहे थे अकबर, और अकबर ने डिफीट किया था इब्राहिम मिर्ज़ा को। शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को द बैटल ऑफ बिलग्राम इन 1540 AD, ठीक है। औरंगजेब ने डिफीट किया था दारुशिकोह को बैटल ऑफ धर्मात में 1658 AD। और बैटल ऑफ जूजू जो हुआ था बहादुर शाह 1 और मोहम्मद आजम शाह के बीच में हुआ था, जो सक्सेसर थे किया औरंगजेब के डेथ के बाद। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए दोस्तों। किसका नेम है अता अली खान। अता अली खान जो है वो किसका रियल नेम था, तानसेन का जो रियल नेम था वो क्या था, रामतानु पांडे था, रामतानु पांडे। आफ्टर द कन्वर्जन इनटू इस्लाम हिज नेम वाज अता अली खान। अता अली खान जो था वो तानसेन का नाम था, तानसेन का असली नाम क्या था, अता अली खान था, ठीक है। चलिए तो ई ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इक्ता जो था वो अलॉट किसके द्वारा किया गया। इक्ता जो है वो दिल्ली सल्तनत के समय में आया, जागीरदारी जो आया वो मुग़ल के टाइम में आया, और अमरम जो है वो मराठा के दौर में आया, और मुकासा जो है वो विजयनगर के टाइम में आया, ठीक है। उसी हिसाब से क्या है, सॉरी लग रहा है मैंने गलत टिक कर दिया है। इक्ता जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में आया, ठीक है। जागीर जो है आपका वो आया था मुग़ल के टाइम में। अमराम जो है वो मराठा के टाइम में आया था, अमरसाम नहीं, अमराम। और मोक्ष जो आया था वो फिर मैं गलत शायद लगा दिया हूँ क्या, नहीं, अमराम मराठा के टाइम में नहीं आया था, अमराम आया था विजयनगर के टाइम में, भूल ना हो। अभी देख लेता हूँ उसका आंसर, अभी देखता हूँ। मोक्ष जो आया था वो मराठा के टाइम में आया था, आइए देख लेते हैं। इक्ता जो था दिल्ली सल्तनत के टाइम में आया था, जहांगीर जो अलॉट किया गया था मुग़ल रूलर के समय में। अमराम जो था वो लैंड ग्रांट किया जाता था विजयनगर रूलर के द्वारा, और मोक्ष लैंड जो था वो ग्रांट किया था मराठा रूलर के द्वारा। देखिए IAS प्री 2000 में आया हुआ सवाल है, पूरा स्टैटिक है, मतलब पूरा जैसे कहते हैं पूरा कहते हैं ना स्टैटिक पोर्शन है, तो मतलब क्या आपको अगर याद है तो याद हो, वरना नहीं याद है, या तो पीछे की कहानी आपको इसीलिए कहता हूँ, आप लोग दोस्तों याद करते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ऑफ द मुगल पीरियड, किसे कहते हैं, सूरत को। मुगल अडॉप्टेड नवरोज़ फेस्टिवल फ्रॉम, किससे किया था, जोरोशियन से लिए थे ये लोग मुगल्स, ठीक है। who stated 5,000 20,000 men worked for 40 years to build palace of 40 pillars at इलाहाबाद in अकबर टाइम, वो कौन था, विलियम फिंच। अब बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मदरसा विच ऑफ द स्पेसिफाइड टीचिंग ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस लोकेटेड इन, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपका लोकेटेड है आपका लखनऊ में लोकेटेड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ऑप्शन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर विथ हेल्प ऑफ द गिवन कोड, ठीक है ना।
सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आई पद्मिनी, रानी पद्मिनी जो थी, ये देख लेते हैं। पद्मिनी द क्वीन ऑफ चित्तौड़, द वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह। In the Battle of Khilji defeated the Rana Ratan Singh Chittor. After killing the Rana Ratan Singh, Khilji wanted Rani Padmini to take his own by force, but पद्मिनी ने डिसाइड किया जौहर विद द सिमिलर टू द सती सिस्टम। रानी दुर्गावती जो तो ग्रेट हिंदू वॉरियर थी, जो क्वीन थी गोंडवाना की। आफ्टर बिंग डिफीटेड बाई अकबर इन द वॉर, शी डैगर्ड एंड किल्ड हरसेल्फ। ताराबाई भोसले जो थी वो क्वीन थी छत्रपति राजाराम भोसले की। ये अक्लेम की क्या, हर रोल इन कीपिंग अलाइव इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल ऑक्यूपेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज आफ्टर डेथ ऑफ हिज हर हस्बैंड। अहिल्याबाई जो थी वो होलकर क्वीन थी, मराठा रूल किंगडम मालवा किंगडम की थी। इंदौर जो था अक्वाइड कर लिया गया था होलकर डायनेस्टी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा उस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? खुलदाबाद जो है द फेमस दारा और टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती लोकेटेड कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। टॉम्ब ऑफ इतमाद उद्दौला जो है लोकेटेड है कहाँ? आगरा। और टॉम्ब ऑफ औरंगजेब कहाँ पे से है लोकेटेड है? वो खुलदाबाद में है औरंगजेब का, औरंगाबाद में। टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब डी जो गलत नहीं होगा, डी ये जो होगा हमारा सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने क्या लिखा था? बाबर ने बनाया था क्या? जामा मस्जिद संभल के पास, ठीक है। हुमायूं ने बनवाया था दीन पनाह। अकबर ने बनवाया था जहांगीरी महल, और जहांगीर ने बना था इतमाद उद्दौला मुसलम। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उस हिसाब से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है कुतुब मीनार को करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। कुतुब मीनार जो है वो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। गोल गुंबद जो है मोहम्मद अली आदिल शाह के द्वारा बनाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। और मोती मस्जिद जो है वो अकबर औरंगजेब के टाइम में बनवाया गया था, ठीक है। कुछ मुगल पीरियड में बैटल हुए थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ खानवा हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 ईडी में। न्यू मुगल एम्पर जो था इंडिया बाई हिज विक्ट्री, ठीक है। फिर बैटल ऑफ घाघरा हुआ बाबर और इब्राहिम महमूद लोदी के बीच में 1529 में। लोदी जहाँ पे हुए डिफीट हो गया, ठीक है। और बाबर का ये लास्ट बैटल था। बैटल ऑफ जो चौसा हुआ था वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जो हुमायूं ने डिफीट कर दिया, और जो यहाँ पे शेर शाह जो थे वो जीत गए थे और हुमायूं वहाँ पे हार गए थे। बैटल ऑफ सोमाऊगढ़ था, सोमाऊगढ़ 1658 में हुआ था औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में, जो अल्टर ब्रदर हैं इनकी इसके दारा शिकोह के। और इन दिस वार दारा शिकोह वाज बैटली डिफीटेड। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन सा बैटल हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन सा हुआ, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बैटल हुआ बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। फिर उसके हुआ बैटल ऑफ चौसा, फिर हुआ बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। फिर हुआ बैटल ऑफ तालीकोटा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली का है वो किसके द्वारा बनवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। बुलंद दरवाज़ा जो है वो आपका है, बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया गया आपका अकबर का द्वारा बनाया गया, फतेहपुर सिकरी और उनके सर द्वारा ही ये बसाया भी गया था। मोती मस्जिद जो आगरा का वो शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली का वो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। मॉन्यूमेंट को अरेंज करना है उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। राबिया दुरानी का टॉम जो है औरंगाबाद में, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बन गया था आपका, सबसे पहले बना था अतला मॉस्क जौनपुर में है, वो बना था, ठीक है। उसके बाद बना था शेर शाह सूरी का टॉम सासाराम में जो है। फिर उसके बाद बना था हुमायूं का टॉम जो दिल्ली में है। फिर राबिया दुरानी का टॉम जो औरंगाबाद में है वो बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द खायर उल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड बाई होम, वो क्या महामंगा के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मुगल पीरियड और उनके पैलेस हैं, ठीक है ना, कौन सा सही करेक्टली मैच नहीं है? तो शेर शाह सूरी का टॉम सासाराम में बनवाया गया था, सही है। हुमायूं का टॉम जो है हुमायूं का मगर दिल्ली में बनवाया गया था। जहांगीरी महल जो है बरहानपुर में बनाया गया था। जहांगीरी महल जो है वो बरहानपुर में नहीं, वो आगरा में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हम लोगों ने पढ़ा था क्या बनवाया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है।
बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बना है, ठीक है। और बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, गलत पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वर नोन एज फतेहपुर। फतेहपुर जो है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद को ही क्या कहते थे, शाह फतेहपुर कहते थे। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइट मार्बल आर यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका इन फतेहपुर, ठीक है, ये एकदम फतेहपुर सिकरी नहीं है। रेड स्टोन मार्बल आर यूज इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा इन एट लखनऊ, गलत है ये भी। बुलंद दरवाजा जो है वो रेड स्टोन से बनवाया गया था, अलॉन्ग विथ वाइट मार्बल डेकोरेटेड। कंस्ट्रक्टेड किसके द्वारा कराया था, अकबर इन 1602, किस लिए, जब गुजरात को विक्ट्री किए थे तब। और ये फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है ना, आगरा में। हाउएवर वाइट मार्बल वॉज नॉट यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सलीम चिश्ती खानका, इंस्टीड ऑफ इट्स मेकिंग हिज टॉम्ब। बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जो है बोथ आर इंस्टीट्यूटेड इन लखनऊ, बिल्ड बाई असफ उद्दौला। सेंट्रल हॉल ये कहते थे, या बड़ा इमामबाड़ा जो था वो 50 मीटर का था, लेंथ क्या था, 16 मीटर का ब्रेथ था इसका। उसका रूफ था ये मोर देन 15 मीटर हाई था, इज विदाउट एनी पिलर। द हॉल इज़ द बिगेस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉल स्टैंडिंग विदाउट यूजिंग एनी वुड, आयरन और स्टोन से बना था। और उसका रूफ जो था वो बना हुआ था जस्ट ब्रिक्स, केवल ईंटों से बना हुआ था, एंड विदाउट बीम और गार्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जो रूमी दरवाज़ा था वो मेन एंट्रेंस था, ठीक है ना, जो बना हुआ था वो उसका मेन एंट्रेंस था क्या, रूमी दरवाज़ा, जो प्लास्टर ऑफ लाइम मोल्डिंग विथ लाखोरी ब्रिक से ये बना हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। मुगल पीरियड में मुलायम जो था वो उसको क्या कहते थे, मुलायम जो था वो नेविगेटर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडियन मर्चेंट शिप, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी है, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, इसको छोड़ दीजिए। बंजारा जो थे वो मेडिवल पीरियड के इंडियन हिस्ट्री में वो जनरली क्या थे, ट्रेडर्स थे। इन टाइम्स ऑफ मुगल द रीजन ऑफ झारखंड वाज नोन एज, उसको हम क्या कहते थे, कुकरा कहते थे, कुकरा। मुगल पीरियड में जो झारखंड का एरिया था उसे हम कुकरा कहते थे। 1765 में कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर्मली नोन एज झारखंड। गवर्नमेंट और मेडिवल पीरियड, गवर्नमेंट ऑफ मेडिवल पीरियड वाज कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज फ्यूजन ऑफ क्या था, पर्शियन था, अरेबिक था, तुर्क मंगोल और इंडियन एलिमेंट भी उसमें मिक्स था। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पनाही और उपाना मेंशन हुआ है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, उसका क्या मतलब, वो किससे मतलब है, उसका मतलब है शूज़ से मतलब है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर देखिएगा। वुडन सैंडल्स वे आर यूज इन इंडियन सिंस एंशियंट टाइम्स ऑफ लेट, यूज लेदर और एनी मटेरियल टू मेक फुटवियर डेवलप्ड। ड्यूरिंग मेडिवल टाइम शूज सैंडल्स लेदर स्लीपर्स वे आर यूज एज चरण पादुकार। पनाही और उपाना जो था वो शूज़ से ही रिलेटेड था। तो दोस्तों हमारा जो है था मुगल एम्पायर का मिसलेनियस टॉपिक्स जो है वो भी हम लोग ने कवर कर लिया विथ इट्स थ्योरी एंड इट्स एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। और धीमे धीमे करते मेडिवल हिस्ट्री में 1-2 ही चैप्टर बचे हुए हैं जो घटना चक्र क्रम के। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इतने ज़्यादा फैक्ट हो गए हैं, इसे याद करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसको अभ्यास के थ्रू ही क्या हो सकता है, याद किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को 3 से 4 बार हमेशा देखिए, रोज़ डेली देखिए। और अगर डेली नहीं देखेंगे तो दोस्तों ये चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। और याद करने के लिए एक ही तरीका है, वीडियो को बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होगा, आपकी रिवीजन ज़्यादा होगी, और रिवीजन ज़्यादा होगी तो आप क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तो क्वेश्चन आपके लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।